हेलो प्रणाम नमस्कार। तत्व गर्ल एक सोच एक आवाज एक बार फिर से आपके साथ और आप सुन रहे हैं मेरा ग्रीन तत्व टॉक्स सस्टेनेबल पॉडकास्ट। So I read the news and the heading was something which asked me to read it more. The title was How Composting Can Reduce Our Impact on the Planet. And wow, that surprised me. They say that every year across the world, 1.3 billion tons of food is either lost or wasted. And with world hunger on this rise, the need to reduce food waste is becoming increasingly urgent. And ये जो report था, it was published by Food and Agriculture Organization, the World Food Program, the World Health Organization, and other UN agencies. That shows that 1/10 of the global population, मतलब कि as many as 811 million people, are undernourished. And ये जो डेटा था ये 2019 से 118 मिलियन और ज्यादा इंक्रीज हुआ था when this study was done. एंड जब हम बात करते हैं एक्सकर्बेटिंग हंगर एंड फूड इनसिक्योरिटी की, फूड लॉस्ट की, फूड वेस्ट की, which contribute to three planetary crises that threaten our collective future, वो है climate change, biodiversity loss and pollution. And इस article में when they were talking about कि how composting can reduce this impact, that actually made me read because ये बहुत ही एक सिंपल सी चीज होती है जिसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। बिकॉज प्रॉपर कंपोस्टिंग करने के लिए ऐसा कोई बहुत ज्यादा साइंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला भी नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। एंड व्हेन वी टॉक दैट इट कैन इम्पैक्ट द प्लैनेट, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट नीड्स मोर एंड मोर अवेयरनेस। सो जब हम बात करते हैं मोर ब्रॉडली अबाउट कंपोस्टिंग, बाय सिंपली रिड्यूसिंग फूड वेस्ट, this composting can help to reduce greenhouse gas emissions that affect climate change, because food loss and waste generate an estimated of around 8 to 10% of global greenhouse gas emissions, while using land and water resources increasingly put pressure on biodiversity. अब ये जो कंपोस्टिंग की जर्नी है ये एट टाइम्स बड़े लेवल पे तो होती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिविजुअल लेवल पे भी इसको लेकर बहुत एफर्ट्स चल रहे हैं। और जब हम बात करते हैं कंपोस्टिंग की, सो आई थॉट ऑन ग्रीन तत्वा टॉक्स लेट्स हैव समवन हु हैज बीन डूइंग दिस कंपोस्टिंग एज अ पैशन. So to discuss more about this composting, today I have with me Meenakshi Sood, who is by profession an independent practicing lawyer, but she is also practicing composting as well. So उनसे इस सब के बारे में और ज्यादा जानने के लिए, first of all, let's welcome Meenakshi to Green Tattva Talks podcast. Hey Meenakshi, how are you? I am good. I am good. Prachi, I'm too good and I must compliment you. My God. You are a very good speaker. I mean, I was listening to you और मुझे लगा, oh my God. Okay, that's really impressive. थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी। ओके, मैं मीनाक्षी के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगी इनसे पहले और बात करने से पहले। एज आई सेड कि मीनाक्षी इज एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसिंग लॉयर। शी हैज स्टार्टेड हर कंपोस्टिंग, आई शुड मोर से सस्टेनेबल जर्नी, जिसके अंदर वो कंपोस्टिंग करना बहुत पसंद करती हैं। शी ऑल्सो मेक्स बायो एंजाइम्स, शी ग्रोज हर ओन ग्रीन्स, या ऑफ कोर्स जिसके बारे में जरूर पूछना चाहूंगी। And in this following the sustainable lifestyle, she is into segregating dry and wet waste. She is even making her own hand wash liquids and bathing soap. So ये minimum waste lifestyle के अंदर, जिसे हम sustainable lifestyle भी कहते हैं या zero waste lifestyle भी कहते हैं। मीनाक्षी, my first question to you is कि जब मैंने आपका Instagram प्रोफाइल देखा था, या of course I would love to tell my listeners, मीनाक्षी का Instagram handle का नाम है Turn and Green, which really I loved it a lot. So Meenakshi, ये बताओ कि what inspired you to start Turn in Green first of all, and how you began your sustainable journey. Okay, so as far as sustainable journey is concerned, it all started during COVID. So yes, during COVID, because I was very on and off with composting before COVID, but during COVID, we all were sitting at homes, and I thought, why not, just invest our time to a thing which has always been very favorite of mine. But
due to certain circumstances, I couldn't able to, follow it rigorously. So I read something about composting and the DIY composters, and I thought, let's give it a try because this is a general tendency of me. What I do is before starting a thing, I read about it, और फिर मैं ये देखती हूँ कि उसके अंदर आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा. You can, some people call me very, तू तो बहुत कंजूस है, but that's how I do. So that's why, I started with first DIY composters, that let me just test my patience, let me just see how much time I can devote. And because if you're not into composting, you would not be able to, see that आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, ओ माय गॉड इतना टाइम लगेगा. बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके माइंड में इफ यू आर नॉट इनटू दैट प्रैक्टिस. But when I started building my own DIY composters, after that, and I started doing it rigorously and religiously, I found out that it's not at all time taking process. So सबसे पहले अगर आप किसी को भी बोलोगे कंपोस्टिंग, सो पीपल विल से यार इतना टाइम नहीं होता है, प्लीज बस इतना ही टाइम होता है कि आप घर को थोड़ा बहुत मैनेज कर पाओ और आप अपने वर्क के लिए चले जाओ. बट देन दैट्स व्हाट माय सिंपल आंसर इज टू ऑल ऑफ देम, टू ऑल ऑफ द पीपल इज दिस, कि आप जितने सेकंड्स अपना वो ऑर्गेनिक वेस्ट एक डस्टबिन में डालने के लिए लगाते हो, ऑल यू नीड टू डू इज आपका जो डीआईवाई कंपोस्ट या कमर्शियल कंपोस्टर है उसको आपको उठा के बस डस्टबिन की बजाय आपको उस कंपोस्टर में डालना है. सो देर आर लेवल, देर आर वेज टू डू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग. आपको सिर्फ अपने टाइम में से कुछ टाइम निकालना होता है. लाइक इफ आई टेल यू इन द मॉर्निंग, आई हैव ऑलरेडी प्लान कि आज मुझे सारी जितनी एक्सपायर्ड मेडिसिन थी मेरी, बिकॉज माई चाइल्ड इज वेरी स्मॉल, तो वो कभी बीमार पड़ जाती है, वी हैव टू बाय मेडिसिन एंड देन वी कीप देम. So I, dedicate certain, you can say the timings of a day. तो मैं पहले से प्लान कर लेती हूँ कि जैसे आज मेरा था कि आज मैं मेडिसिन वाला बॉक्स देखूंगी. सो आई ओपन द बॉक्स. It took me only 8 minutes to see all the medicines, dispose them off, wash the empty bottles, and then keep it for a dry waste. Because otherwise हम क्या करते हैं, हमने देखा ओ एक्सपायर होगी, फेंक दो इसे डस्टबिन में. But actually, when I started, composting and learning about the dry waste and the wet waste, I realized a thing that जा तो कहीं नहीं रहा है. ऐसा जो हमें पहले लगता है कि हम उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं और वो गायब हो जाता है, वो गायब कहीं नहीं हो रहा है. इट इज वेरी देयर. वो आपके खुद के एनवायरमेंट में है, वो वही रहेगा. आप मर जाओगे, आपके आने वाली जनरेशन भी शायद मर जाएगी बेचारी, उससे आने वाली भी जनरेशन का पता नहीं क्या होगा, बट वो वेस्ट वहीं रहेगा, वो वेस्ट वहीं रहेगा हमेशा. सो दैट थिंग रियली बॉदर्स मी एंड आई सेड कि I don't want to be part of it. And believe me, once you decide that you don't want to be part of it, you will start, not only minimizing your waste, you will start applying your mind कि अगर मैं ये खरीद रही हूँ, नहीं, इसका डिस्पोजल कैसे होगा. So you become, very conscious about your choices, about your living, about your buying, things. So coming back to my journey, yes, I started doing it rigorously in, during COVID. And I think after a year or so, I realized that I'm ready for a commercial, composter. And then I purchased daily dump compost buckets. Uh, then I started doing in buckets. Then I think there was no looking back. With the buckets, I thought that अब DIY वाला हो गया, because see, DIY is the best thing. But if you want to, go to a commercial one, it will help you because with time your family also grows. And when the family grows, of course, you need to have more space. You need to have a better, you can say a better process, a better things, so that you can practice all these little things in your life. राइट. सो मीनाक्षी, आपने जैसे ये कहा, आपने जो ये लाइन बोली ना, नथिंग डाइज, तो उससे मुझे एक कोट जरूर याद आता है वेंडलबेरी का, कि इफ अ हेल्दी सॉइल इज फुल ऑफ डेथ एंड इट इज ऑल्सो फुल ऑफ लाइफ. मतलब जब हम बात करते हैं वर्म्स, फंगाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल काइंड, given only the health of the soil,
नथिंग दैट डाइज इज डेड फॉर वेरी लॉन्ग। एंड आपने जैसे कहा ना, इट्स ट्रूली मतलब रिलेटेबल टू दिस कोट, कि हम जिसे डेड समझ रहे हैं, डीके समझ रहे हैं, खराब समझ रहे हैं, वेस्ट समझ रहे हैं, इट इज नॉट दैट वेस्ट, इट टर्न्स समथिंग इनटू अ हेल्दी सॉइल। या आई थिंक इसीलिए शायद कंपोस्ट को आजकल ब्लैक गोल्ड का नाम भी दिया जा रहा है, बिकॉज Absolutely. इट इज सर्टनली समथिंग डिफरेंट, जो कि बहुत ही यूजफुल चीज है। एंड जब हम कंपोस्ट, एक सिंपल से शब्द की बात करते हैं, सो हम जब साइंस की बुक की बात करते हैं, आई थिंक मे बी जब हम छोटे थे तो हमारे घर में भी कंपोस्ट शायद होता था, लेकिन हमें एज अ वर्ड वो नहीं पता था। सो इट इज Correct. बेसिकली, जो हम कहते हैं, इट्स अ मिक्सचर दैट कंसिस्ट लार्जली ऑफ डीकेड ऑर्गेनिक मैटर एंड यूज फॉर फर्टिलाइजिंग। ये एक डेफिनेशन होती है जो मैंने भी अभी रिसेंटली, जब मैं ये इसके बारे में ज्यादा पढ़ने लगी, तो आई वाज जस्ट चेकिंग थ्रू द बुक्स। सो उसमें एक माइक्रोबियल प्रोसेस होता है डिग्रेडेशन का, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है। आपने जैसे कहा ना कि टाइम, जितना टाइम हम उस वेस्ट को कचरे के डब्बे में डालने में लगा रहे हैं, या जितना टाइम हम उसे सिर्फ फेंकने में लगा रहे हैं, आई थिंक यू आर वेरी गुड इन सेइंग दिस, कि उतना ही टाइम लगेगा अगर आप उसको कंपोस्ट बिन में डाल रहे हैं। एंड गुड दैट यू शेयर्ड अबाउट दिस बिन। मीनाक्षी, मुझे ये जरूर पूछना है, बिकॉज मैंने आपके इंस्टा के इस पे प्रोफाइल पे कई बार देखा है, आपने जैसे जिक्र किया बकेट का, एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट सम ब्रांड्स हु आर गिविंग दीज बिन्स, कंपोस्ट बिन्स। सो यू स्टार्टेड ऑफ, जब हम कंपोस्टिंग की अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, ऑफ कोर्स मैंने भी एक टूटी बाल्टी थी, मटका था, उससे स्टार्ट किया था, एंड देन यू कैन बाय दीज डम्प्स। सो हम बात करते हैं वेस्ट को, जब इसको सेग्रीगेट करके डालने की, what do you recommend to people? because जनरली लोगों का, जो मेरे साथ भी हमेशा होता है सवाल, हमारा घर छोटा है, टाइम नहीं है, कहाँ रखें, अगेन बारिश का मौसम है। सो आपने जैसे कहा कि बहुत से क्वेरीज होती हैं। सो एज अ लेमैन, बिकॉज आपने जैसे रिसेंटली अगर अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तो आई वुड लव टू नो, बिकॉज मैंने आपकी प्रोफाइल पे भी ऑफ कोर्स कई, आप कंपोस्टिंग के जैसे क्लासेस की तरह, मैं कहूंगी कंपोस्ट का एक सीरीज भी आप चला रही हैं। सो जस्ट प्लीज शेयर विद आवर लिसनर्स कि अगर हम जब ये बात करते हैं कि टाइम उतना ही लगता है, what is the basic startup thing which we need to have? जब मैं कहूं कि मेरे घर की चाय की पत्ती निकल गई है, मैंने आलू के छिलके निकालने हैं, I have some mango peels, banana peels, what to do next? How to begin with that? Okay. So see, if you're a beginner, आप challenges भूल जाइए. Okay. First thing which you need to do is प्लीज कीप इन माइंड दैट आप कैसे करना चाहते हैं. सो सपोजिटली जैसे मेरे किचन में आप देखेंगे, मेरे किचन में एक बॉक्स है जो मैंने खुद ही डीआईवाई बनाया है. उसके नीचे छोटे छोटे होल्स किए हुए हैं, एंड आई हैव वन डिस्कार्टेड प्लेट जो हमेशा उसके ऊपर रहती है. सो नीचे प्लेट रहती है, ऊपर वो बॉक्स रखती हूँ, एंड आई हैव इंस्ट्रक्टेड माई कुक एंड एवरीवन नाउ फॉर्चुनेटली इन माई फैमिली नोज कि आपको किचन का वेस्ट इसी में डालना है और उस वेस्ट में कुछ नहीं डालना. सो व्हाट आई डू इज आई वेक अप इन द मॉर्निंग, एंड दिस इज ट्रू. आई वेक अप इन द मॉर्निंग, I, after brushing and doing all my, startup activities, I pick up that trash, that organic waste. मैं अपने कंपोस्ट बिन को खोलती हूँ, उसको उसमें डाल देती हूँ. और उसके बाद मैंने ड्राई, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग ओनली ड्राई लीव्स, आई डोंट यूज एनीथिंग एल्स. हाँ, मेरी कुछ बहुत अच्छे नेबर्स हैं, सबको पता है कि आई डू कंपोस्टिंग, तो कभी कभी वो मुझे सॉ डस्ट वगैरह दे जाते हैं, जो लकड़ी का बुरादा जो होता है, अगर उनके घर में काम हो रहा है. सो आई प्राइमरली यूज ड्राई लीव्स विच आई कलेक्ट ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन्स, लाइक जब पतझड़ वगैरह होता है तब आप कलेक्ट कर सकते हैं. आई होard them literally. I have big bags so that I don't have to invest, my money, because see, you सब मेहनत से कमाते हैं, and it actually pinches when you have to spend even a penny on these tasks. So I tell people as well कि all you have to do is आप एक साल का एक बड़े बैग में अपने पत्ते जो ब्राउन लीव्स होते हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट आस्क योर किड्स, या आप उसके ऊपर बिल्कुल उनको उसके ऊपर थोड़ा सा भी आप प्रेशर डालेंगे, आप उसके ऊपर बच्चों को खुदवाएंगे, इट्स एक्टिविटी फॉर देम. तो सो इफ दे जंप ऑन दैट बैग, वो लीव्स ब्राउन इतनी क्रंची होती हैं दैट दे विल श्रेड इनटू वेरी स्मॉल पीसेस. तो आपका ब्राउन मैटर का इज रेडी. सो कंपोस्टिंग इज व्हाट, इट्स ऑल अबाउट ग्रीन्स एंड ब्राउन्स. आपका जो किचन का जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन्स, because that has moisture content, that has a lot of water in it. So you dump that in your compost bin,
and then you cover it with the brown matter. What is brown? Brown is dry leaves, cocoa peat, microbial powders are also available in the market, sawdust. You don't have anything, do it with the mitti, because mitti is also considered as a brown. Just, just dry soil. Do it with the soil. So I wake up in the morning and I, add my green waste. I cover it with brown. That's it. I'm done for the day. After that, I don't do anything. Okay. I come back, in the evening. If I see कि हाँ ज्यादा हो गया है waste, तो मैं उसको दोबारा से जाकर evening में डाल देती हूँ. So first you need to decide and dedicate few seconds, few minutes of your entire 24 out of your 24 hours of time window कि मैं ये काम morning में करूंगी या मैं evening में करूंगी. And now, genuinely I can believe that there are a lot of people who don't get time in a day. So what you can do is you can keep a bigger bin in your kitchen. Okay. And if you're comfortable, see, the only problem is that a lot of people say that it smells. I don't know. I have personally seen my organic waste has never it has never emit any kind of smell. So I have no issues in that. So if you find that you have issues, dump it regularly or on daily basis. अगर आपको लगता है कि नहीं आप नहीं कर सकते, तो आप 2 दिन का, वैसे भी जो लोग अपना मिक्स स्पेस भी रखते हैं वो वैसे भी एटलीस्ट आपके 1 दिन तो पड़ा ही रहता है. सो इफ इट इज सेग्रीगेटेड, ऑफ कोर्स इट वुड नॉट एमिट एनी काइंड ऑफ स्मेल. तो आप थोड़ा बिन बड़ा रखिए सो दैट once in a day or once in 2 days you can just add that organic waste into your compost bin, and then you can cover it. Honestly speaking, if you will see, it would only take 1 minute of yours. And when I'm saying 1 minute, I say it because I have to take that trash and I have to go on my terrace. So people who have balcony can, would only take half a minute. आपको करना क्या है? आपको वो डब्बा उठाना है अपने किचन से और वो डंप कर देना है. जो आप डस्टबिन में डालते हो वो आपको कंपोस्ट बिन में डाल के बस ऊपर से उसे कवर कर देना है, brown matter say, and your problem is solved. That's it. No one is asking you to invest a lot of time in that, because there is no investment of time in doing that regular activity. So yes, I think yeah, please. so. Yeah, I think it would only take a minute of yours to do it, and I think we all have 1 minute in our life. मैं यहाँ पर दो बातों पे आना चाहूंगी. तो वेरी फर्स्ट थिंग, जो अपने स्मेल की बात की, तो दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अ गुड कोट बाय जॉर्ज मेरेडिथ, दैट अर्थ नोज नो डिसोलेशन, she smells regeneration in the moist breath of decay. And I think this is all composting about. And जब आप टाइम की बात करते हो ना मीनाक्षी, मतलब मेरे को भी बहुत लोगों ने ये चीज कही है, टाइम नहीं मिलता, तुम कैसे कर लेते हो, वाह तुम इको फ्रेंडली हो और समथिंग. मुझे लगता है जब आपको सीरीज देखने का टाइम है, फोन पे बात करने का टाइम है, व्हाट्सएप देखने का टाइम है, रील स्क्रॉल करने का टाइम है, तो कंपोस्टिंग के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकते हैं. एंड मैंने Absolutely. आज का एपिसोड इसीलिए उस आर्टिकल से स्टार्ट किया था विद सीज कि आपका छोटा सा कंपोस्टिंग का एफर्ट कैन हेल्प इन अ क्लाइमेट चेंज. बिकॉज इसका मैं इस पे भी आपसे भी डिस्कस करना चाहूंगी. जो हम ये एरोबिक प्रोसेस की बात करते हैं कि लैंडफिल्स में ये हो नहीं पाता है बिकॉज उसमें मीथेन गैस जनरेट हो जाती है, लेकिन घर में लाइक आपने होल्स की बात की थी कि क्यों उस डब्बे में होल होना चाहिए, बिकॉज इट नीड्स एयर ऑल्सो. सो मुझे सच में नहीं लगता. आई थिंक जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक है वो तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे आर हैप्पी टू डू दिस कंपोस्टिंग, बिकॉज उनको हाथ गंदा होने का भी डर नहीं है और उनको पेड़ पौधों के साथ टाइम वेस्ट करने के लिए भी ऐसा नहीं लगता इट इज वेस्टेज, बिकॉज दे आर बिल्डिंग देयर ओन ग्रीन्स, दे आर मेकिंग देयर ओन कंपोस्ट एंड दे आर हैप्पीली, मतलब मैं कहूंगी थेरेपी ले रहे हैं एक प्लांट्स के साथ. सो ये टाइम नहीं देने को तो ना, अब पहले पहले तो मैं सच में, लोग मुझे कहते हैं टाइम नहीं मिल रहा, मैंने कहा ओ आई अंडरस्टैंड. बट मैं कह सकती हूँ कि जब मैं इतने सारे काम करके आई कैन एटलीस्ट वर्क ऑन स्प्रेडिंग अवेयरनेस, आई एम रेडी टू टेल यू, देर आर पीपल हु आर रेडी टू हेल्प यू, गाइड यू, एडवाइज यू. आप अपनी जिंदगी के पूरे 24 घंटे भी नहीं, चलो मैं कहती हूँ 8 घंटे नींद में भी निकाल दो, 10 मिनट नहीं दे सकती हो, ये मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है. मतलब मैं आजकल तो डांट के बोल देती हूँ, क्यों नहीं निकल सकते 2 मिनट, व्हाट व्हाट हार्म्स यू, मतलब व्हाट इज टेकिंग सो मच ऑफ टाइम ऑफ योर लाइफ.
हेल्थ इश्यूज है, कुछ भी है, मैं कहती हूँ आप प्लांट के साथ टाइम बिता कर देखिए, घर में वेस्ट सभी के निकल रहा है। आप ये तो नहीं, आप उसको वेस्ट बास्केट में डालने को तैयार हो, आप काली थैली में डालने को तैयार हो, डस्टबिन वाले को देने को तैयार हो, लेकिन आप उसे एक डब्बे में डालने को तैयार नहीं हो। तो मतलब टाइम को लेकर तो आजकल अब मैं थोड़ी सी चिढ़ने लगी हूँ। इनिशियली आई यूज्ड टू से कि ओके आई अंडरस्टैंड, बट मैं सोचती हूँ कि क्यों, मतलब 10 मिनट निकालना, हाउ कैन इट बी so difficult? And मीनाक्षी से आपने मुझे Absolutely. बताया ना कि आपके neighbors now that they know that you do all these, so they offer you sawdust या जो भी उनके पास। तो मुझे ये बताओ कि हाउ हैज बीन दिस जर्नी सिंस यू टर्न सस्टेनेबल? मतलब मैं क्यों बात कर रही हूँ, जब हमने ऐसी बात की लोगों की भी, पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट या ओके यू आर डूइंग दिस जीरो वेस्ट लिविंग, आप सस्टेनेबल, मतलब सो कॉल्ड सस्टेनेबल, हमें एक एक अलग उसमें रखा जाता है। दे आर रेडी टू लिसन टू यू, बट दे डोंट टेक द एडवाइस, ठीक है, दे सपोर्ट यू, बट मुझे ऐसा लगता है एक कान से निकाल, मतलब दूसरे से निकाल देते हैं, दे आर रियरली लिसनिंग। सो मुझे तो घर में भी प्रॉब्लम आई, मैं बिल्कुल साफ कह रही हूँ, मतलब मुझे दूध का पैकेट कैसे काटना है समझाने में मुझे 1.5 साल लग गए, तो इट्स नॉट Same इजी। here. नाउ किड्स अंडरस्टैंड, नाउ दे हैव ग्रोन अप कि ओके व्हेन वी आर स्टेपिंग आउट, ओ मम्मी तो हैंकी लेकर ही चलेगी, वो टिश्यू पेपर यूज नहीं करने वाली है, मम्मी के इसमें एक ग्लास होगा, वो अपने ग्लास में ही पीएंगे, एंड दे विल देन टर्न कि अगर हम कुछ खा रहे हैं तो मैं अपना अंदर से पर्स में से निकाल रही हूँ, सो दे विल टर्न। अभी कल ही की बात है, माय सन वाज आस्किंग मी कि मम्मा जूस लेकर आना, आई हैड गॉन टू मार्केट, सो आई वाज कैरिंग माय जो पानी का वो होता है, मैंने पानी पिया, एंड उसी में तो द जूस वाला वाज आल्सो, एंड ही वाज लुकिंग एट मी कि ओ वाओ, अच्छा मैडम बॉटल में लेके जाओगे। सो चेंज इज कमिंग, लेकिन बहुत स्लो होता है। यही चेंज टीवी में कोई सेलिब्रिटी किसी चीज को कर देता है ना, तो इट कम्स विद इन Absolutely. अ मिनट। Yeah. So how has been your sustainable journey in point of view of support कह सकते हो, या लोगों के आपके साथ का कोऑपरेशन कह सकते हो, मतलब how has been this journey since you thought कि yes now I have to do it? So, okay, I'll start with my own family. Because charity begins at home. Yes. तो मेरी फैमिली में देखिए, as far as support is concerned, no one has supported me, honestly speaking. Support in the sense कि ये होता है कि अगर मैं ये expect करूँ पहले, when I started my journey, so मैंने ये expect करना शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने polythenes remove की when I started, when I doing it religiously. तो मैंने एक डेडिकेटेड डब्बा रखा। अब क्या होता था, बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, आई ट्रैवल अ लॉट, I go to various states, for my roti and pani. So अब क्या होता था, जो भी पीछे से होता था उनके लिए बहुत इजी है, उन्होंने उठाया वो डब्बा और उसको दे दिया डस्ट कचरे वाले को। आई एम सो सॉरी, आई शुड नॉट से दैट, ही इज अ पर्सन हु कम्स एंड क्लीन्स योर होम। तो वो कचरे वाले नहीं, कचरे वाले हम है, एंड ही इज द पर्सन हु इज एक्चुअली क्लीनिंग, सो इज अ क्लीनिंग गाय। उसको उठाया, इजी है, दे दिया। अब आई यूज टू एक्चुअली आस्क माई हस्बैंड कि कितना टाइम लगेगा उस डब्बे का ढक्कन खोलने में और उसको उसमें डालने में। यू डोंट हैव टू, आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग यू, आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप आओ और उसके ऊपर वो ड्राई लीव्स डाल दो। Everyone has their own fears. I can understand my husband and my mother-in-law, they are very scared of maggots, and maggots are part of ecosystem. वो आते ही आते हैं। But slowly and gradually, if you'll ask me, my husband is very, he's very scared of lizards. तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता बिल्कुल भी कि छिपकली आ गई है। So it's we have actually, हमने अपने दरवाजों के नीचे एक छोटे से वो आते हैं, फिलर्स आते हैं, which you can buy from market or Amazon. हमने वो फिलर्स लगाए हैं so that the lizards should not enter in our house. And of course, क्योंकि वो कंपोस्टिंग हो रही है, उसके पास बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, कीड़े हैं, छिपकली आती है उन्हें खाती है, तो lizards are bound to them. And believe me, a lot of people have even, have been very disappointed in seeing कि वो lizard आ रही है और lizard से हमें डर लगता है तो अब हम नहीं करेंगे। But fortunately, अब स्थिति ये है घर की कि at least my husband is into all these things. तो अगर मैं नहीं होती, वो उठाता है, वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है मेरे बिन में, एंड आफ्टर 2-3 days आई कम एंड देन आई कवर इट विद द ब्राउन्स, बिकॉज अब हमारे पास जो कमर्शियल कंपोस्टर है वो पूरा ढका हुआ है। और कोई भी आप कमर्शियल कंपोस्टर या अपना भी DIY कंपोस्टर लोगे, जस्ट मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से कवर कर रहे हो, सो दैट इवन इफ यू डोंट हैव टाइम टू कवर इट विद द ब्राउन्स, एटलीस्ट उसके आसपास fruit flies या फिर black soldier flies नहीं आएंगी। if they enter, then it becomes a little complicated for the beginners, क्योंकि maggots हो जाते हैं। maggots को हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। slowly and gradually you start
learning all these things. So yes, from support point of view, any beginner would find it very challenging because the family or the people around them would not be supporting. But slowly and gradually, believe me, हर कोई आसपास वाला आपका change हो जाता है. So just like my husband has changed, now my mother also, my mother used to say तुम अकेली कुछ नहीं कर सकती, तुम ये अकेली जो झंडा लेके करने चली हो उससे कुछ नहीं होगा. So I still tell her कि कोई बात नहीं, कुछ हो या ना हो, I don't want to be part of that सिस्टम. एटलीस्ट मेरी कॉन्शियस क्लियर रहेगी कि मैंने जब से मुझे अवेयरनेस आई, मैंने ये काम करना छोड़ दिया. आई थिंक दैट्स गुड इनफ. सो अब मेरी मदर को भी समझ आ गया कि ये ढीठ है, ये तो पीछे हटेगी नहीं, तो मुझे ही पीछे हटना पड़ेगा. सो शी ऑल्सो डज इट व्हेन शी कम्स टू माई हाउस. And my mother-in-law is also very nice. She doesn't do it, but yes, she makes sure कि वो वहीं पड़ा रहे. And कुछ मेरी हाउस हेल्प्स हैं जिनको पता है कि दीदी यहीं फेंकती हैं, तो वो वहीं फेंकेंगे, वो उसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे. तो यस, इफ यू आर अ बिगनर एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि आसपास के लोग आपको एकदम से सपोर्ट करने लग जाए, दैट वुड ओनली कम विद पेशेंस एंड टाइम. As far as neighbors is concerned, I don't want to comment on them. See, everyone does. So I tell you, एक आंटी थी हमारे यहाँ. Now she has left, but she used to give me her organic waste of kitchen waste to me कि आप बेटा आप करते हो, आप कर लिया करो. So one day, कुछ टाइम बाद मैंने आंटी से पूछा, आंटी आप क्यों नहीं करते हो? लाइक बेटा मैं अब थोड़ा बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा एज हो गई है, इन चीजों के लिए झुकना पड़ता है. सो आई टोल्ड हर, आंटी आपको झुकना भी नहीं है, बकेट आप ऊपर उठाओ, अपने लेवल पे रखो. ऑल यू हैव टू डू इज मिक्सिंग. और अगर आप चाहोगे तो मैं मिक्सिंग भी करने आ जाया करूंगी. इनिशियली मैं आपको सिखा सकती हूँ. बट आई थिंक व्हाट आई फर्मली बिलीव, पीपल लैक विल टू डू इट. It is not about your health. It is not about the time. It is not about any other excuse which people want to make. It is only about that you need that will to do anything. आप कभी कभी there are timings when I have seen a lot of friends of mine, people around me, जिनका ये होता है कि यार मैं बस अब ये बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ. सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू स्टार्ट अ बिजनेस? यू डेडिकेट, इन्वेस्ट टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग, एंड इट इज योर विल which would take you to higher grounds. बट यहाँ क्या है, यहाँ ये होता है कि ये हमारा काम नहीं है, हम क्यों करें? बिकॉज बहुत इजी है बोलना हमारा काम नहीं है. टू सम एक्सटेंट yes, I do understand, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी करेक्ट है, that we are paying taxes, this that, but for a fact that the government is not doing it. Why don't you start it? गवर्नमेंट भी हमसे ही फॉर्म होती है. सो ग्रेजुअली द changes would start come, but it needs to start from you. So if you want to change world, you need to change yourself first. Only then the world, you can see change in the world. So beginning में, I know for a fact that there would be no support, but yes, gradually it would come to you. आई एग्री एंड बिल्कुल मतलब सही कहा आपने, बिकॉज आई थिंक मैंने भी अभी तक जितने इंटरव्यूज लिए मैंने एक्चुअली दिस आई हैव ऑब्जर्व्ड बहुत कम सपोर्ट मिलता है. एंड मुझे लगता है आपने ये बात बिल्कुल सही की कि ये सपोर्ट की कमी ना विलिंगनेस की वजह से है, क्योंकि वो आपके सपोर्ट आपको आप जो काम कर रहे हैं उससे मना नहीं कर रहे. दे नो कि दिस इज गुड. लाइक इन माय फैमिली आल्सो, माय इन-लॉज स्टे विद मी, माय किड्स आर देयर. वो ये नहीं कहते कि अरे यार आप क्या कर रहे हो, बिकॉज दे नो दिस इज समथिंग गुड. किड्स हैव अ इको क्लब इन स्कूल, एवरीवन इज वाचिंग न्यूज, दे आर अवेयर कि थिंग्स आर हैपनिंग. बट हाँ, विलिंगनेस टू हेल्प, विलिंगनेस टू कोऑपरेट एंड विलिंगनेस टू से यस कि हाँ हम भी ये करेंगे. मतलब मैं कंप्लीटली एग्री करूंगी कि ये सबसे बड़ा वर्ड है. एंड जो हमेशा अपने इंटरव्यूज में भी बोलती हूँ, आपका इंडिविजुअल कॉन्शियस. बिकॉज ये होता है ना, जैसे आपने कहा कि आप अपना बिजनेस, आपको शॉपिंग जाना है, आपको ये आपके अंदर से आ रहा है. तो ये मुझे लगता है कंपोस्टिंग है, जीरो वेस्ट लिविंग है, सस्टेनेबिलिटी है, मेकिंग एनीथिंग, चूजिंग व्हाट यू वांट टू यूज, हाउ मच वेस्ट यू वांट टू जनरेट, व्हाट यू बाय, ये आपका अंदर का कॉन्शियस है. बिकॉज ल्यूर करने के लिए तो मीडिया है ही है, मार्केट्स है ही है, आपको खुद को डिसाइड करना है. जैसे आपने कहा ना उन आंटी का, मुझे वो एग्जाम्पल भी अच्छा लगा. अगेन इट बिकॉज आंसर्स क्वेरीज फॉर दोज पीपल जो ये कहते हैं कि हाँ झुकना पड़ेगा.
देर आर बिन्स जो आपकी हाइट तक भी पहुंच सकते हैं, जैसे कि मतलब आप यू कैन पुट इट ऑन अ स्टूल, यू कैन पुट इट ऑन द स्टैंड्स विच आर अवेलेबल, तो ऐसा नहीं है, एंड दीज बिन्स आर लेयर्ड, सो आप इसको ऊपर रख सकते हैं। अगेन मिक्सिंग की भी जब आपने बात की ना मीनाक्षी, ऑफ कोर्स से हाथ से करना तो बहुत अच्छा है, बट देन आई थिंक यू हैव दोज आयरन या Cool, मेटल की वो मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, cool. सो थिंग्स Absolutely. आर देयर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वर्म्स में हाथ डालना आपको नहीं पसंद है तो कोई कंपोज जो हम कर रहे हैं हम आपको फोर्स करेंगे कि नहीं जाइए, ऑल्दो इट 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 इज गुड बिकॉज मिट्टी में हाथ डाले बिना उसका आनंद भी नहीं आता, बट या देयर आर टूल्स अवेलेबल, आप वो ले लीजिए। एंड वो कोई बहुत महंगे टूल्स नहीं है जिनको ऑर्डर करने के लिए आपको 10,000 15,000 खर्च करने पड़ेंगे, दे आर सिंपल टूल्स जस्ट विच आर हेल्पिंग यू कि आप उस मिक्सिंग को कर सके। सो मैं अपनी उस न्यूज आर्टिकल पे वापस जाना चाहूंगी व्हेन विच आई स्टार्टेड, कि कंपोस्टिंग जब हम बात करते हैं, बिकॉज क्वेरी ये रहती है हाउ इट कैन हेल्प इन क्लाइमेट चेंज। द रीजन इज कि हाँ, मैं इस पर मीनाक्षी अभी इस पर डिस्कशन पे आऊंगी, एरोबिक वाले पे। व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि कंपोस्टिंग बहुत ग्रेट वे है अपनी ऑर्गेनिक वेस्ट को जो जनरेट होता है घरों में करने के लिए, बिकॉज एक स्टडी के अकॉर्डिंग जनरली 30 to 40% हमारा जो फूड होता है वो हमारा वेस्ट जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पीलिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम द कुकिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट ओवर्स, या कोई चीजें ऐसी होती है, चाय रोज बन रही है, कॉफी का रेसिड्यूज है, ये चीजें ऐसी हैं जो होती हैं, फिर लेफ्ट ओवर्स में कई बार थोड़ी बहुत सब्जी है, कुछ खराब हो गया, देन इसमें आजकल Absolutely. काफी लोग मंदिर के फूल यूज कर ले रहे हैं, तो देर इज लॉट ऑफ वेस्ट विच इज गेटिंग जनरेटेड, and I think composting is a very good idea if you want to put a use to it. And on a bigger ground, local communities में ये चीज हो ही रही है, but I think at every level it counts, and it's an excellent way to improve what you grow in your own backyard, balcony, terrace garden, वो भी नहीं है तो घर में छोटी सी जो खिड़की का कोना है वहां पर। बेनिफिट्स की बात करेंगे तो कंपोस्टिंग इज अ नेचुरल वे टू रिसाइकल, it is free. The best thing about composting is it is free and it saves on your trash because वो आपके वेस्ट को लैंडफिल में ऐसे ही जाने देने से बचा रहा है। अगेन दैट ऑर्गेनिक मैटर जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, इट प्रमोट्स हेल्दी प्लांट्स। अनदर थिंग, इट इज अ मल्टीपर्पज गार्डन एसेंशियल, बिकॉज कहा जाता है कि अगर आपको एक अच्छा गार्डन चाहिए तो कुछ टूल्स और कंपोस्टिंग, ये दो चीजें तो आनी चाहिए। एंड कंपोस्टिंग ना मुझे कहीं ना कहीं लगता है इट हेल्प्स यू रियलाइज कि हाउ मच यू वेस्ट, बिकॉज जब आप देखोगे ना कि डेली मेरा वेस्ट ज्यादा है, तो शायद आप कॉन्शियसली एफर्ट पुट इन करोगे उसे थोड़ा कम करने का। आप एफर्ट पुट इन करोगे कि हाँ यार मैं खाना उतना ही बताऊं कि बचे ना, मैं कोशिश करूं कि मैं उसको वेस्ट उतना ही जनरेट हो जितना मैं उस डंप में डाल सकती हूँ, बिकॉज कई बार लोगों का ये भी प्रॉब्लम होता है, वेस्ट इतना ज्यादा जनरेट होता जा रहा है कि वो बिन्स भरते जा रहे हैं, व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो इसके लिए भी मतलब मैंने बहुत लोगों को ये भी सुना है कि आप अपनी सोसाइटी में उस मैन्योर को डाल सकते हैं, आप आसपास लोगों को दे सकते हैं। सो ऐसा नहीं है, सॉल्यूशंस ऑलवेज एग्जिस्ट। आई थिंक विलिंगनेस, कॉन्शियस इंडिविजुअल का कॉन्शियस जो होता है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर ना वो सोच आनी बहुत जरूरी होती है कि नहीं, मुझे ये सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली जनरेशंस एंड अपने अच्छे ग्रीनर एंड हेल्दियर प्लैनेट के लिए करना है। ओके, सो मूविंग अहेड, आपसे जब मैंने पहली बार बात की थी तो यू वर टेलिंग मी अबाउट कि यू हैव बीन टेकिंग वर्कशॉप्स, तो आपसे बात करने पे मुझे ये पता चला था कि नॉट ओनली कंपोस्टिंग, यू आर इनटू मेनी थिंग्स एंड दैट इंक्लूड्स हैंड वॉश लिक्विड्स, बाथिंग सोप्स, सेग्रीगेशन जैसे कि आप करती आ रही हैं। सो ये जो हम जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल की चीजें कहते हैं, how do you do about these things? And along with this, Meenakshi, मैं भी जानना चाहूंगी, along with of course your professional time, you have you make time for all these things, you take workshops also if I'm not wrong, regarding the same things, this making hand wash liquids, composting, segregating, so उस सब के बारे में please थोड़ा सा बताइए। Yeah, so अभी recently मैंने summer vacations जब बच्चों की हुई थी, so I started with this. The last time also I did certain summer workshops. The only difference between the last workshops and this time the workshop was that I charged a little from the parents, and I'll tell you reason why. Last time जब मैंने summer vacations की workshops ली, समर वेकेशन में वर्कशॉप्स ली, तो उस वक्त लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ मदर्स आस्क्ड मी दैट या इट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया, वी विल we will let our children attend these workshops, and it was more physical workshops.
So what we did is, I circulated messages in my, in my friend to my friends, and then they circulated messages in their, school groups, and that's how, children came forward. Now the one thing which I noticed is that parents were not very serious. Okay, कभी बच्चे आते थे, कभी बच्चे नहीं आते थे, और कभी जो मतलब बच्चे, कई बच्चे आए, उन्होंने 2-3 वर्कशॉप्स, 2-3 क्लासेस अटेंड की, और लास्ट वाली क्लासेस अटेंड नहीं की, फॉर वट एवर रीजन, कि आपको इनको कहीं जाना है, दिस दैट. सी, when someone is doing such kind of job, please understand that one, that person is not doing for money. There are a lot of ways of earning money on social media platform, and better, better amounts you can earn through, a lot of collaborations, advertisements, a lot of things. But when someone is, conducting a workshop related to composting or dry waste and segregating, they are only trying to bring awareness. They are not trying to earn. Okay. So, आप जब नहीं आते, when you don't turn up for the workshops, just keep this thing in mind कि दूसरा बंदा जो dedicate कर रहा है अपना time, उसके लिए कितना difficult है. It's a very demotivating factor. It disappoints the person who is conducting the workshop. Okay. So this time I made sure that I'll be charging, I think it was 299 or 399 I charged from per kid. And believe me, Prachi, all of the kids who has paid have attended the workshops till the last day of the workshop. So that is the difference. When you pay money, you're very serious about it, because people tend to say, oh, मैंने तो खर्च किया, मैं तो पूरा वसूल के जाऊंगा. ठीक है. और जब आपको कोई फ्री में ये ज्ञान दे रहा है, तब आपको नहीं लेना है. तब आपको ये होता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं. अच्छा कोई बात नहीं, आज तो घूमने चलते हैं, छोड़ो क्या करना है वर्कशॉप्स. Why such a difference? There are a lot of other people who are just trying to bring awareness about all these issues, which are very crucial for the sustainability, for the living or an existence of human race and humankind. तो अगर आप इन चीजों को अवॉइड कर रहे हो, एंड दैट्स व्हाई आई there's a lot of friends on the Instagram as well. So Nilima connected with me, and she has been doing bioenzyme beautifully. She has been making in large batches. तो उसने मुझसे पूछा that Meenakshi, I also want to start with composting workshops. I told her, Nilima, please start. Please start, but make sure if you are doing it with kids, let the parents pay at least a minimum, amount, so that the parents become serious. So that, because the children, see, you can't blame children. They are very, they are very naughty, and उनको आपको focus करवाना पड़ता है. Parents should know the importance of all these things. Once the parents know it, only then the child will be aware, only then the child will practice certain, a certain of these practices. They will follow it, they will, tell their friends, and, then it's a kind of, then circle would start, and मैं कर रही हूँ तो आगे 4 बच्चे और करेंगे. So the parent needs to be very serious. And I told Nilima कि अगर आप बच्चों के साथ करो, please charge a fee. If you're doing with adults, of course, it's very different, Prachi, because with adults can understand the whole procedure in a day. But with children, you have to gradually, slowly tell them over, 5-6 sessions of composting. So yes, I take a lot of workshops. Mostly my workshops are physical. But this time I went online as well, because of the, we have seen harsh heat, harsh summers in June, and the Delhi was actually boiling. So most of the parents, yes, told me कि आप online करो, online we will try to, let our children attend those classes. And physically, yes, every Saturday or Sunday, whenever, there is a need. So a lot of now people call me. I recently conducted a workshop in Pocket E of my area, and there were 7, females who wanted to learn about the process, and now they are very happy. We, created some DIYs, but unfortunately, unfortunately, sometimes because of the time constraints, and and I can understand, there are certain people who are very shy about cameras and Instagrams, uploading their pictures. So I usually, and honestly speaking, I don't even have
that much of time that, see, I can dedicate my time in teaching people, but when it comes to taking pictures and making videos, I'm a little, hand tight in that. So I don't very oftenly do that. But yes, I conduct workshops basically on bioenzymes and also on composting. As far as soap making is concerned, yes, I do make my own soaps. I have started making my own hand wash, liquid hand wash, which is basically nothing but soap nuts, which you can soak overnight, and then you can boil it in the morning, and then you have to squeeze those soap nuts. The I think that leather would come, and I just add half a bottle of bioenzyme in that, and your liquid hand wash is ready. It's that easy, and it only, as I told you, it only about will. If you have a will to do it, you will be able to take out time and do certain things. And if you don't have will, then all the best to you. एब्सोल्युटली राइट, मतलब विल की बात या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की बात जो हम कर रहे हैं बार बार, इट स्टेज। एंड आपने जो भी बताया ना मीनाक्षी, उसमें से जो मेरे को मेन वर्ड जो मैं पिक करना चाहूंगी इस समय इज वसूलना। ठीक है, हम सिर्फ पैसों को लेकर ही नहीं, मैं कहती हूँ अगर आप आलू खरीद के लाए हो, आप फ्रूट खरीद के लाए हो, उसको वसूलो, उसका वेस्ट भी जो निकल रहा है उससे कंपोस्ट बनाओ। सो मैं इस वसूलने वाले वर्ड को यूज करना चाहूंगी कि जब हम इतना अवेयर या कॉन्शियस होते हैं व्हेन वी पे अ फीस फॉर समथिंग, why are you not conscious or why are you not वसूलिंग it from the money you are spending on whatever things you are buying? So my मतलब मैं सबसे बार बार हमेशा यही कहना चाहती हूँ, लाइक आपने अभी जो लास्ट में अपना हैंड वॉश वाला भी बताया, again you are not letting that soup nuts go waste, that's why you are reusing them, you are repurposing them into a different way by adding bioenzyme and you're putting it to a better use. Again हमने उसके जितना भी उसमें से वसूला जा सकता था किया। सो मैं सिर्फ ये बच्चों के लिए ही नहीं कहूंगी मीनाक्षी, मतलब पेरेंट्स को तो ऑफ कोर्स हम कहते हैं बिकॉज बच्चों को ढालने के लिए लाइक यू सेड एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, वेज होते हैं और उनको जल्दी सिखाया जा सकता है, या अटेंशन स्पैन थोड़ा कम होता है, पेशेंस रहना पड़ता है। आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये कंपोस्टिंग बायो एंजाइम मेकिंग ये भी ना हमें पेशेंस बहुत सिखाता है, बिकॉज इट्स नॉट अ प्रोसेस की Absolutely. बटन दबाया हो गया। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद एवरीथिंग, देयर विल बी चैलेंजेस, देयर विल बी लाइक हमने बात की थी कि वर्म्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट देन प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं आते, इट्स नॉट ओनली द कंपोस्टिंग जिसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, देयर आर थिंग। सो मेरी ये पेरेंट्स को लेकर बच्चों से तो मैं हमेशा कहती ही हूँ, बट अगर आप अपने बच्चों को लेकर उस एंगल से देख रहे हैं कि एक वर्कशॉप अटेंड करने वो जा रहे हैं तो दे शुड अटेंड, why are you not that much of conscious about the things which you are bringing in the house? आप घर में कोई चीज ला रहे हैं तो उसके बारे में भी 10 बार सोचिए, अपने बच्चों को भी समझाइए क्या ये चीज मुझे सच में चाहिए। मैं अभी आपको 2-3 दिन पहले का एग्जांपल बताती हूँ। आई वेंट टू अ मार्केट एंड शॉपिंग नहीं करनी थी, दोस्त मिल गई, चीज अच्छी लगी, डिस्काउंटेड रेट पे थी, मैंने खरीदी, कंप्लीटली एग्री, बहुत टाइम के बाद मैंने कुछ खरीदा। घर आने के बाद माय सन वाज आस्किंग मी हैप्पी, मैंने कहा मैं सच बताऊं आई एम कंफ्यूज बिकॉज आई एम वन पर्सन जो अननेसेसरी नहीं खरीदती। उस दिन करीब साल भर के बाद दोस्त मिली, चॉइस अच्छा लगा, आई एंडेड अप बाइंग एंड आई वाज कंटिन्यूअसली थिंकिंग क्या मुझे सच में इसकी जरूरत थी। मतलब अब मैं वो पर्सन हो गई हूँ जिसको जरूरत नहीं है तो हम नहीं ले रहे हैं, एंड मैं उस चीज को लेकर अभी तक 3 दिन से सोच रही हूँ क्या मुझे सच में उसकी जरूरत थी, मैंने क्यों ली। मतलब वो कॉन्शियसली अंदर आ गया है कि जब तक जरूरत नहीं है वी आर नॉट गोइंग टू नहीं है। बाय। सो ये मुझे समझ Absolutely. नहीं आता कि जस्ट बिकॉज एक एड आ गई, जस्ट बिकॉज पैम्पलेट आ गया, न्यूज़पेपर में कुछ आ गया, आप चल देते हैं मार्केट में, जस्ट बिकॉज आपको अच्छा लगा आपने खरीद लिया। एक वो जो रूल होता है कि एक ड्रेस को 2-4 बार पहनने से ज्यादा नहीं पहनना, ये सारी चीजें जब आप दिमाग में भर सकते हो तो मुझे लगता है एक कॉन्शियसली जीरो वेस्ट लिविंग है, कंपोस्टिंग है, सस्टेनेबिलिटी है, इसे दिमाग में भरने में पता नहीं लोगों के खिड़की दरवाजे क्यों बंद रहते हैं, मेरे को सच में अब समझ नहीं खिलेंगे। आता। एंड लाइक ये वाला कोट भी मैं हमेशा बहुत बार बोलती हूँ, बहुत ही सिंपल सा कोट है जो मैं आर्स में हम बिलीव करते हैं पीट सीगर का, कि इफ इट कांट बी रिड्यूस्ड, reused, repaired, rebuilt, refurbished, refinished, resold, recycled Absolutely. or composted,
then it should be strictly restricted, redesigned और removed from production. And मुझे ना ये चीज Absolutely. हमारी प्रोडक्शन के लिए सच में लगती है कि वो चीजें बनती ही क्यों है जिसकी जरूरत नहीं है, जो रिसाइकल नहीं हो सकती है। एंड देन हम बात करेंगे, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, सेमिनार्स करेंगे अबाउट सस्टेनेबिलिटी। फर्स्टली जब उस चीज की जरूरत नहीं तो वो चीज प्रोडक्शन ही क्यों हो रही है, वो बन ही क्यों रही है, चाहे फिर वो प्लास्टिक की छोटी छोटी चीजें हों, अननेसेसरी कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ दिखने में अच्छी लग रही है, डेकोरेटिव थिंग्स है जिनकी मुझे लगता है कि वैल्यू लॉन्गेटिविटी कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करती है। एंड जब हम वही, जैसे मैंने शुरू की थी कि आपके इस टॉक से मैंने जो मेन वर्ड पिक किया था वसूलने का, हम हर चीज में अगर एक ह्यूमन टेंडेंसी लेकर चले, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग ये चाहते हैं कि अच्छा पैसे दिए हैं ना तो हम पूरा अटेंड करें, बिकॉज उन्हें क्या मैटर कर रहा है, वो 500 रुपए या वो 300 रुपए, उन्हें क्या लग रहा है हमने ये 300। मैं कहती हूँ कि अगर फिर आपने कोई चीज खरीदी है, बी इट क्लॉथिंग, बी इट खाने की चीज, बी इट यूज की चीज, उसको भी आप उस एंगल से ही हमेशा क्यों नहीं लेते हैं कि मुझे उसको पूरा वसूलना है। एंड आई थिंक वसूलना कैन बी रिलेटेड टू रीयूजिंग इट, रिसाइकलिंग इट, Absolutely. पुटिंग इट टू बेटर रिपेयर, मतलब उसको जो हम पहले भी करते आते थे, या फिर रीपर्पजिंग इट। एंड जहां तक कंपोस्टिंग की मैं बात करूंगी ना, पेशेंस, जो बच्चों के साथ भी मैं कह रही थी कि इट सिग्निफिकेंटली कट्स डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रैश। तो अगर हम थोड़ा सा एफर्ट कंपोस्टिंग पे डालेंगे तो हमारे घर का जो वेट वेस्ट है, एंड वेट वेस्ट ना, मतलब मैंने आपके इंस्टा प्रोफाइल में भी मैंने ये चीज नोटिस की थी, मतलब यू आर ऑल्सो ऑब्जर्वेंट अबाउट दीस थिंग, ये कोई नया वर्ड नहीं है, हमने अपनी दादी नानी मम्मियों को ये बचपन से करते हुए देखा है। सो ये कोई नया वर्ड या कोई नया चैलेंज या कोई नया ट्रेंड नहीं है इंस्टाग्राम का कि हम पोस्टिंग करनी है। आई थिंक घर में Absolutely. फ्रूट वेजिटेबल पील्स है, चाय पत्ती है, गीला कचरा है, ये सबके घरों में सिर्फ आज नहीं बरसों से चला आ रहा है। तो इसको कट डाउन करना, उसको लैंडफिल में जाने से रोकना, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड कार्बन emissions which takes to haul and Absolutely. process those materials। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में या हिंदी में मैं कहूं कि लैंडफिल में कचरा उस थैली में जाकर चला जाता है, राइट। आप अगर अपने कचरे को रिड्यूस करेंगे तो सबसे पहले तो उसमें कमी आएगी, उसके बाद उस सामग्री को ढोने, यानी कि वो कचरे की गाड़ी जो आपका कचरा लेकर जा रही है और संसाधित करने में, उसको जो वहां पर प्रोसेसिंग हो रही है, लगने वाली लागत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। ओके, यहाँ पर मीनाक्षी Absolutely. मैं एक बात जरूर करना चाहूंगी, दिस हैज बीन आस्क्ड, मतलब टू मी ऑल्सो, बट सिंस आप कंपोस्टिंग हमेशा से लाइक पसंद करती है करना, मैं थोड़ा सा डिफरेंस समझना चाहूंगी। लाइक मुझे लोग कहते हैं कि हम कंपोस्टिंग क्यों करें, बिकॉज कंपोस्टिंग, मैंने घर से कचरा भेजा, वो भी तो लैंडफिल में जा रहा है, वहां पर भी तो वो बन सकता है कंपोस्ट, तो मैं घर पे क्यों करूं। सो देर इज अ डिफरेंस ऑफ, अगर हम साइंटिफिक टर्म में वर्ड यूज करें तो एरोबिक प्रोसेस का डिफरेंस। हाउ कैन यू, मतलब लाइक सिंस यू हैव बीन डूइंग इट, कैन यू जस्ट शेयर इट विथ माय लिसनर्स, इफ यू कैन एक्सप्लेन द डिफरेंस ऑफ दिस, कि कंपोस्टिंग हम जो लार्ज स्केल पर होने देना चाहते हैं, एंड कार्बन इमिशन, एंड डूइंग इट एट होम, हाउ डज इट मैटर। So I'll start with an example. सबसे पहले अगर लोगों को ये लगता है, so a lot of people, you rightly said प्राची, कि lot of people have asked me as well, कि जब मेरे भी खुद के फ्रेंड्स को, see I come from a lawyer's background, a lot of friends, mostly मेरा फ्रेंड सर्कल वो ही है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही एकदम it's very surprising for them, you know, and I should not put it, but कई लोग तो अपनी डिग्निटी के नीचे इस चीज को ट्रीट करते हैं कि आप कूड़े को हाथ भी कैसे लगा सकते हो। एंड आई जस्ट आस्क देम कि अगर आप कूड़े को हाथ नहीं लगा सकते तो आप अपनी सब्जियां कैसे छीलते हो, अपने घर में खाना कैसे बनाते हो। एब्सोल्युटली, आप जब छील रहे हो तो वो खाना भी तो उसी में से निकला है। बिल्कुल। पील्स आर पार्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स, बस क्योंकि आपने उसे छील दिया और एक डेडिकेटेड प्लेस पे डाल दिया तो उसके बाद आप उसे छूने में भी आपको इस तरह की फीलिंग आती है। I don't know. So, anyways, so as you rightly put, Prachi, see, जब ये हमारा wet waste है, जो dry waste के साथ mix हो जाता है, and then when it goes to landfill, it cannot decompose, Hmm. and it is bound to release methane gases, which are very intoxicated, which are very harmful for every living creature in this world. So people need to understand what happens is आपने अपना ड्राई और वेट वेस्ट मिक्स कर दिया,
उसके बाद आपने उसे लैंडफिल में फेंक दिया। अब लैंडफिल में आप दो ही फॉर्म में फेंक सकते हैं। एक, या तो आपने उसको पॉलिथीन में बांध दिया, पॉलिथीन आपके क्लीनर ने ली, आपके गार्बेज पर्सन कलेक्टर आया, उसने ली और उसके सपोजिटली डायरेक्टली वहां वो डंप हो गई लैंडफिल में। तो पॉलिथीन में, अब पॉलिथीन से वो अपने आप तो बाहर आ नहीं जाएगा। एंड पॉलिथीन इज व्हाट? इट इज प्लास्टिक, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। ओके, तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो तो 500 साल डिकम्पोज नहीं होगा जिस पॉलिथीन में आपने अपना कचरा बांध के फेंका है। तो फिर अंदर वाली चीज अपने आप तो कंपोज हो नहीं सकती, क्योंकि एनारोबिक विच डज नॉट नीड एयर, एनारोबिक कंपोस्टिंग भी होती है, बट एनारोबिक कंपोस्टिंग के लिए भी आपको एक सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एनारोबिक कंपोस्टिंग के लिए 1 इंच ऑफ एयर भी उसमें नहीं घुसनी चाहिए। एंड कपल विद द फैक्ट कि उसके जो कंटेनर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उस पे रीमिक्स पाउडर्स होते हैं, वो आप डालते हो। देन एनारोबिक कंपोस्टिंग में आप उसको बिल्कुल प्रेस कॉम्पैक्ट करके रखते हो उस डब्बे में जितना आप कर सकते हो। ओके, एंड दैट्स हाउ एनारोबिक कंपोस्टिंग वर्क्स। उसमें फंगी क्रिएट होती है, वो डिकम्पोज होना शुरू होता है। एक चीज जो आपने आपने अपना वेट वेस्ट ड्राई वेस्ट के साथ मिक्स करके पॉलिथीन में फेंक के आपने फेंक दिया, वो कभी डिकम्पोज नहीं होगा, ना एरोबिकली ना एनारोबिकली। वन, बिकॉज इट इज मिक्स विद ड्राई वेस्ट। वो एनवायरमेंटली वो एनवायरमेंट कभी भी नहीं मिल रहा लैंडफिल में। लैंडफिल में इट इट कैनॉट डिकम्पोज। उसके साथ आपने सपोजेटली वायर फेंक दी। ओके, जो आपने तार फेंकी उसमें एल्यूमिनियम होगा, कॉपर होगा। धीरे धीरे अगर वो थोड़ा बहुत डिकम्पोज हो रहा है, या फिर अगर वो बिकॉज ऑफ वाटर उसके उसमें मॉइस्चर जा रहा है तो वो गल रहा है, वो जब गलेगा उसमें से अलग तरह की गैस निकलेगी। आपका वेट वेस्ट है उसमें अलग तरह की गैस निकलेगी। All combined with all these gases, methane, this, that, everything is released in an environment, and you are taking, you are breathing in the same environment. So अगर लोगों को ये लगता है कि वो वहां होता है, वो वहां नहीं हो सकता, that is not possible, because it is a mixed waste. Second thing, there are no browns in that. So when you compost your waste, you need to have browns. It is only mixture of greens and browns combined together, then the process of composting happens. अब वो नेचुरली वहां कोई वो तो है नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट डिजाइन कर सकती है अ लार्ज पिट। ओके, अ लार्ज पिट इज मेड इन अ लैंडफिल, एंड देन यू आर टेकिंग केयर, यू आर टेकिंग कॉन्शियस स्टेप कि ये सिर्फ ग्रीन वेस्ट उसमें जाए, एंड देन यू आर क्रिएटिंग लेयर्स। ओके, इट्स लाइक अ सैंडविच प्रोसेस कि आपने ग्रीन वेस्ट डाल दिया, उसको आपने फिर मिट्टी से ढक दिया, बट दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। ओके, अगर गवर्नमेंट को कभी वो डिजाइन करना है, दैट नीड्स टू बी डिजाइन ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। सो जब वो होगा उसका हम वेट नहीं कर सकते, वी कैन वेट फॉर दैट, एंड वी हैव बीन वेटिंग सो मेनी इयर्स। लोगों को आज से अगर 10 साल पहले पीछे जाए प्राची, नो वन न्यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके, वी नेवर न्यू कि गाजीपुर में इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो रहा है कचरे का, वी नेवर न्यू इट। I was very small when I still remember I asked my dad कि पापा ये क्या है, and my dad said ये अरावली के hills है। And now I tell my dad कि पापा आप इतना झूठ बोलते हैं, हम तो my dad is like मैं तुम्हें क्या बताता बेटा, तब तुम्हें नहीं समझ आता, you were very small, but now I know that these landfills are nothing, they are creations। तो आप उनको देख के अगर आज आंख या नाक सुकुड़ते हो, या अगर आप गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हो, इट इज देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू टेक दोज कॉन्शियस स्टेप्स, बिकॉज नाउ यू आर मेच्योर, नाउ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और अगर आप जानबूझ के ये काम कर रहे हो तो फिर देन only God can help us, our future generation. And I am sorry to say, but we are leaving nothing. Our parents, if you will ask me, Prachi, I think हमारे parents शायद हमारे parents या उनकी generation composting नहीं करते थे, but they were very conscious about everything. I still remember मेरे डैड के जूते जब तक फट नहीं जाते थे और मोची उन्हें ये नहीं बोल देता था that it's नॉन रिपेयरेबल, तब तक मेरे फादर मेरी मदर कभी, एंड एवरीवन, आई थिंक आपके पेरेंट्स ने भी कभी नहीं खरीदा होगा। आज हमारे पास पैसा है, वी हैव कन्वीनियंस, there is lot of consumerism, over consumerism which is going on, and all thanks to our generation we have been doing this. Our parents have been living sustainably. I still remember, and I have, I still,
I started, doing all these things because of my mother. I see my mother. My mother has never used in her life a kitchen towel. वो कभी बाहर से नहीं खरीद के लाती। हमेशा जो हमारे टॉवल्स होते हैं जो डिस्कार्ड हो जाते हैं, कॉटन के कपड़े हैं, वो ही डस्टिंग क्लोथ्स बनते हैं, वो ही किचन में टू वाइप ऑफ योर योर शेल्व्स एंड ऑल दैट, उसके लिए यूज होते हैं हमेशा से। एंड दैट्स हाउ वी हैव आल्सो अडॉप्टेड दिस हैबिट। सो इफ यू विल से दैट, आई थिंक माय पेरेंट्स generation people have been more sustainable. It is only us that we have polluted the environment to a level that I don't know what would happen to the next generation. आपने ये मतलब इवन जो ये गाजीपुर वाला जिक्र किया, थैंक्स, मतलब आपने ये बताया, मतलब इवन आई यूज टू ट्रैवल टू द वेस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ द दिल्ली व्हेन आई वाज स्मॉल, एंड तब वो देखते थे, तब मुझे ये समझ में आता था कि ओके दिस इज समथिंग डिफरेंट, पता नहीं क्या है। And then recent years I was not in that part of the Delhi, and when I visited after around 15-20 years, तो वो कुछ अलग ही लेवल पहुंच चुका था। एंड उस समय मैंने मूवी देखी थी वॉली, एंड आई वाज लाइक कि अगर ये 2 से 4 एक सिटी के अराउंड है, सो वॉली मूवी सच होना कोई बड़ी बात नहीं है। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट ओनली। एंड आपने जो ये बोला ना मीनाक्षी, बिल्कुल सच कहा कि उन लोगों को सस्टेनेबल वर्ड नहीं पता था, हमारे पेरेंट्स को, या कंपोस्टिंग वर्ड नहीं पता था, पर वो लोग वो सब कर रहे थे। मतलब हमारे यहाँ पर भी जैसे नया कपड़ा है आजकल, जिस तरह से कि 100 का मिल रहा है, 200 का मिल रहा है, इसलिए खरीद लो। नया कपड़ा Correct. अनटिल अनलेस कोई ओकेजन हो आता ही नहीं था। वी वर आस्क्ड टू Like यूज दोस Diwali. क्लोथ्स। या You remember only on Diwali only our on parents Diwali, used it is such clothes. associated with that. Yeah, And even जैसे आपने शुरू में कहा ना कि कचरे को लोगों को लेकर लोग होता है ना कि वो ये कचरा आप हाथ कैसे डालते हो, सेम थिंग इज विद दीज टॉवल्स आल्सो। लाइक मुझे बहुत लोग कहते हैं ना, जैसे किसी के घर जाओ, टिश्यू पेपर से टेबल साफ होगा, टिश्यू पेपर से किचन साफ होगा। मैंने कहा क्यों, आप लोगों के बचपन में क्या मम्मियां साफ नहीं रखती थी? दे वर वॉशिंग इट विद अ क्लॉथ। मैं अभी भी घर पे यूज करती हूँ, तो अटेंड तुम टिश्यू नहीं यूज करती? मैंने कहा मैं बहुत खुशी से टिश्यू नहीं यूज करती हूँ, एंड आई एम हैप्पी नॉट यूजिंग इट। एटलीस्ट आई एम नॉट डेली फेकोइंग 10 से 15 टिश्यू पेपर जस्ट बिकॉज कि मुझे ऐसा लगता है कि सारी सफाई तो टिश्यू पेपर ने ही करनी है। पहले तो जैसे मम्मियां तो साफ ही नहीं correct. करती थी तुम्हारे कपड़ों से, जो कि रोज धुल सकता है। सो आपने ये बिल्कुल ठीक कहा, कंज्यूमरिज्म फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंडली ना, कहीं तो भी हमने अपने दिमागों में ये स्टैंडर्ड्स सेट कर लिए हैं, या एक लेवल बना दिया गया है, ये ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा होगा तो ही वैसा होगा। Aesthetically clean. या मुझे नहीं समझ में आता कि मतलब कंपोस्ट को लेकर या किसी चीज को ना यूज करने को लेकर ये कैसे जुड़ गई चीजें। एंड कहीं ना कहीं मतलब हम लोग जो ये एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं अपने लेवल पे, जैसे कि आपने पहले भी कहा था कि सपोर्ट वैसा नहीं मिलता। आई रियली विश टू ऑल माई लिसनर्स ऑल्सो, या जो भी इसको बाद में देखना चाहेंगे, आप लोग अपनी अवेयरनेस को, अपनी इन रील्स एंड शॉर्ट्स के व्यूज को प्लीज सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेकर आइए, ना कि मार्केट में कौन सा नया फैशन ट्रेंड आया है और मैं खरीद सकता या सकती हूं या नहीं पर लेकर आने की जगह। एंड अगेन जब हमने ये कंपोस्टिंग की जो अभी डिस्कशन स्टार्ट की थी, जब एरोबिक वाली, सो मैं बहुत जस्ट आई विल कंक्लूड विद अ सिंपल टर्म कि कंपोस्टिंग बेटर होती है एनवायरमेंट के लिए दैन लैंडफिल्स। ये जो मैं कई बार बताती भी हूँ अगेन, कि कंपोस्टिंग जैसे कि मीनाक्षी ने बताया इज एन एरोबिक प्रोसेस that uses oxygen to break down organic matter, resulting in carbon dioxide, a less potent greenhouse gas than methane. जबकि in contrast, landfills decompose organic matter without oxygen, producing methane, which is 25 times more effective at tapping heat. And जैसे कि मीनाक्षी ने पहले भी बताया कि हम जो ये सोचते हैं कि हमने अपनी थैली में बांधकर कचरा दे दिया, वो लैंडफिल में डिकम्पोज हो जाएगा, वहां ऐसा नहीं होता है। बिकॉज जैसे आप चाहते हैं ना कि ये चीज वहीं जाकर खरीदी जाए, या आपका कोई फेवरेट फूड आइटम है वो वहीं जाकर खाया जाए, इट इज समथिंग लाइक दैट। अगर वो चीज एक लेवल पे होनी है तो वो वहीं होनी है, एंड इसकी शुरुआत आपसे ही होगी। आप अपना वेस्ट जब ऑब्जर्व करेंगे, आप जब उसे लैंडफिल में जाने से रोकेंगे, आप उसे सेग्रीगेट करेंगे, वेट वेस्ट को एक बेटर यूज पे डालेंगे,
I think change तभी आ पाएगा, because recycling this food and other organic waste into compost, it provides a range of environmental benefits जो कि आपको समझने होंगे. एंड मैं कहूंगी जैसे कि मीनाक्षी है या और भी मेरे कई इंटरव्यूज में ऐसे लोग आए हैं जो एडवाइस देने को तैयार हैं. दे कैन हेल्प यू, दे कैन गाइड यू. दे हैव बीन टेकिंग वर्कशॉप्स एंड इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स वगैरह पर भी दे हैव बीन शेयरिंग दीज वीडियोज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बहुत डिग्री ली हुई चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है जिसे आपको समझना होगा. एंड व्हेन टॉकिंग अबाउट द रील्स एंड ऑन, मीनाक्षी के इंस्टाग्राम हैंडल को आई वुड लव टू शेयर. हर इंस्टाग्राम हैंडल स्टैंड्स फॉर turn.in.green, turn in green. So you can just follow her, see how she has been sharing her sustainable lifestyle journey. And recently, if I'm not wrong, Meenakshi has also started a composting series, which is Yeah. coming in different episodes. So she has been teaching and explaining how she has been doing it at her own level. उनके घर में ही वो कैसे कर रही हैं, उसके लिए कोई आपको नई जाकर चीजें खरीद के नहीं लानी है. शी इज टेलिंग यू कि आप अपने घर में ही छोटी छोटी अवेलेबल चीजों से ही ये कैसे कर सकते हैं. बिकॉज सर्टनली कंपोस्टिंग, it helps in improving soil health, it reduces greenhouse gas emissions, it is a recycling nutrient, and it is mitigating the impact of drought. So with ample of benefits, ये जो ब्लैक गोल्ड बनाने का तरीका है, इसे प्लीज 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 मैं अपने सभी लिसनर्स से हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, कोशिश तो करके देखिए. आलू को छीलने के बाद उस पील को सिर्फ डस्टबिन में डालने से पहले एक बार कंपोस्टिंग कैसे की जाती है, वो कौन से बिन में डल सकती है, डस्टबिन में डालने की बजाय उस बिन में डालने की कोशिश कीजिए. एंड कमिंग अगेन टू योर प्रोफाइल मीनाक्षी, या आई वुड आल्सो लव टू टेल यू दैट मीनाक्षी वाज फीचर्ड इन हैप्पीएस्ट हेल्थ मैगजीन आल्सो, जिसमें भी उनकी इस जर्नी को कवर किया गया था कंपोस्टिंग की, आल्सो द ग्रीन स्पेस की. सो मीनाक्षी, मुझे वो छोटा सा एक जरूर जानना चाहूंगी निकलने से पहले. यू हैव दिस हैशटैग कहूंगी या एक टाइटल रील मैंने देखी थी, ग्रोइंग एंडलेस ग्रीन्स इन स्मॉल स्पेस. सो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैक्सिमम लोगों का नहीं क्रंच होता है, हमारे घर में तो जगह ही नहीं है. ओके, आई कंप्लीटली एग्री कि विद ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड स्पेस क्रंच एंड बिजी लाइफ, पीपल आर, छोटे घर हो गए. बट मुझे आपका इसीलिए ये वाली जो सीरीज या रील थी मुझे बहुत अच्छी लगी. सो शेयर समथिंग, बिकॉज मेरे को बहुत अच्छा लगा था मीनाक्षी ये देख करके आपने बाल्टी में भी पेड़ लगाए हुए हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज पालक और समथिंग, जो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा. शी हैज शेयर्ड हर वीडियोस की किस तरह से उन्हें ओनियन की लीव्स वगैरह भी जो थी अपने इस छोटे से बर्तनों में से निकाली. सो शेयर समथिंग अबाउट दिस ग्रोइंग एंडलेस ग्रीन्स इन स्मॉल स्पेस वाली जो आपकी जर्नी है, प्लीज. So growing endless greens is so, Prachi, how composting started, because I wanted to grow my own food, but that never happened on a large scale. Of Okay. course, जब आप अपना खुद का फूड उगाना चाहोगे तो इट नीड्स टू बी, देन फिर आपको ये होता है कि अगर आप भिंडी उगाना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट अपनी फैमिली के हिसाब से 12 पौधे लगाने पड़ेंगे, तो सो दैट एटलीस्ट एक पाव तो भिंडी कलेक्ट हो पाए एक दिन में, तो सेकंड डे सेकंड और थर्ड डे वो बन पाएगी. Okay. तो वो ऑफ कोर्स दैट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, absolutely, and I can totally understand that that's not possible. So I came up, because I love to grow my food, at least certain food. So I came up with this idea of grow endless greens in your small balcony. So what you need to do is, it's just a small ideas. तो जैसे हम क्या करते हैं, अगर आप बीट रूट खरीदते हो मार्केट से, तो बीट रूट के जो हेड्स होते हैं, सो इफ यू बरी द हेड ऑफ द बीट रूट, जो ऊपर से हम पोर्शन काट देते हैं, और अगर आप वो बरी कर लोगे उसमें मिट्टी में, सो जो बीट रूट्स की एक्चुअली लीव्स होती हैं, दे आर वेरी न्यूट्रिशियस इन नेचर, सो यू कैन ग्रो दैट. ओके, आपको बहुत ज्यादा कोई बड़ा सेटअप नहीं चाहिए, एक छोटा सा आप गमला ले सकते हो, उसके अंदर आप उसे हेड को just bury the head, the top of the beetroot, and then you will end up in growing with your compost. You'll end up in growing those क्रंची न्यूट्रिशियस ग्रीन लीव्स. और इसके अलावा और बहुत सारी चीज होती है, जैसे प्याज होता है, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग कि एक सीजन आएगा, ओके, उसमें क्या होगा, आपका प्याज, जहां प्याज रखते हो वहीं पे बैठे बैठे स्प्राउट होने लग जाता है. सो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन जस्ट रिमूव दैट स्प्राउटेड पार्ट. अब वो हेड, वैसे भी हम वो टॉप और बॉटम हटा देते हैं, ज्यादातर वो बॉटम से निकलता है, तो आप वो बॉटम और टॉप हटा के यू जस्ट बरी दैट थिंग ऑल्सो in the in this thing in your planter. उससे भी जो आपके वो जो
वो आते हैं, व्हाट वी कॉल इट इज, जिससे वो हरे प्याज निकलते हैं, ग्रीन अनियंस। हाँ, या ग्रीन अनियंस। सो Okay. या सो आप वो मिट्टी में डाल दो अपने प्लांटों में, एंड यू विल एंड अप इन हैविंग दैट ग्रीन, ग्रीन दिस थिंग। आई एम जस्ट मिसिंग द वर्ड, बट आपको वो मिल सकता है ग्रीन से। ऐसे ही मैंने बहुत बार किया है कि जैसे आपका पुदीना होता है, आप पुदीना लेकर आते हो, तो पुदीना आप जो मोटी मोटी आपकी डंडियां पुदीने की, आप उसमें से लीव्स हटा दो, just keep them in water, dipped in water for 2-3 days. After 2-3 days, you'll start noticing कि उनकी थोड़ी थोड़ी roots आने लग गई हैं। आप उसको मिट्टी में डाल दो, you will have, with the homegrown compost, you can grow पुदीना। सिमिलरली धनिया भी आप ऐसे कर सकते हो कि धनिया के साथ बस ये होता है that you need to see the temperature. So if the temperature is going below than 30 degrees Celsius, you can grow your own धनिया by seeds, or just by purchasing that धनिया, और उसकी जो नीचे वाली roots होती हैं वो dip करके आप you can just have your own. So Endless Green was just a small episodes which I loved doing it. एंड मुझे लगता है बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने घर में उगा सकते हो, इफ ऑफ कोर्स यू हैव सम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ग्रोइंग योर फूड। जैसे पालक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, नो रॉकेट साइंस। आपको सिर्फ अपना होम ग्रोन कंपोस्ट डालना है, उसको मिट्टी के साथ मिक्स करना है। आप पालक के बीज, इनफैक्ट पालक इज द ओनली थिंग विच यू कैन ग्रो थ्रू आउट ईयर्स, ओनली ओनली एक्सेप्ट हार्श समर्स, क्योंकि हार्श समर्स में जैसे दिल्ली है, वहां पे अब जैसे 50-52 डालने लग गया, उसमें दे मे डाई ऑफ, बट एक्सेप्ट दोस 2 months यू कैन ग्रो पालक ब्यूटिफुली इन योर ओन अपार्टमेंट्स, योर बालकनीज। कितना 4x4 या 6x6 का गमला लेके आप ग्रो कर सकते हो। यू विल हैव, that's a pleasure. It's a pleasure to grow your own food, and when you grow your food, Prachi, only then you will realize the importance of food. आपका मन नहीं करेगा उसको फेंकने का, आपका मन नहीं करेगा कि, आपका मन कभी कभी ये भी नहीं करेगा कि मैं इसको खा लूं। You'll just keep on gazing that कि yes, this is grown by me, by my own efforts. So yes, that was all episodes. Wonderful, and I can see the smile on your face when you say the pleasure of growing your food. And आपने जो इतनी अच्छी अच्छी हरी सब्जियों की बात की ना, धनिया, पुदीना, spring onion, पालक, so Spring onion, guys, yeah. yes, of course, you can please follow Meenakshi. She has been sharing these tips कि आप कौन सा पौधा लगा सकते हैं। ये पालक वाली रील तो of course मैंने भी देखी थी कि it is easy to grow. प्याज है, if you don't understand how she has just explained, you can see her video. She has always been sharing them on Instagram कि आप किस तरह से ये छोटे छोटे जो खाने की चीजें हमारी हैं, उन्हें अपने घर के छोटे से एरिया में, छोटे से पॉट में भी, टूटी हुई बाल्टी में भी, या पुराने पड़े हुए किसी इसमें भी लगा सकते हैं। So Meenakshi, it was really nice talking to you. Very informative, I Same here. must say the session was. So thank you very much for your time, and thank you for Thank you, sharing your Prachi. journey. Thank you, Prachi. Thanks to you. Thanks to you. चलिए, so again, once again, I will share with my listeners, Meenakshi का Instagram handle है turn.in.green, where she has been sharing all these sustainable lifestyle tips. आप उन्हें follow कर सकते हैं, and yes, of course, greens grow करने की tips भी मीनाक्षी ने उस पे दे रखी हैं. Try and follow her, and कोई भी आपको advice चाहिए, कुछ चाहिए, तो I'm sure she's available on the Instagram platform. Once again, thank you, Meenakshi. Thank you. Composting Thank you, Prachi. कंपोस्टिंग की जो आज हमने बात की, उसमें वंस अगेन मैं निकलने से पहले बोलना चाहूंगी कि द बेनिफिट्स ऑफ कंपोस्टिंग आर अनडिनाइबल. दिस नेचुरल प्रोसेस नॉट ओनली improves soil health and promotes plant growth, but also reduces waste, saves money, and lessens our carbon footprint. And by debunking common misconceptions, जो कि सॉल्व करने के लिए मीनाक्षी जैसे बहुत से लोग अवेलेबल हैं, and understanding the benefits of composting, more people can adopt this sustainable practice and contribute to a healthier planet. So gather your food scraps and yard waste and start composting today. I'll end this episode with a quote by Rumi that ground's generosity takes in our compost and grows beauty. Try to be more like the ground. So आज के लिए इतना ही. Tatva Girl will be back with more inspiring and motivating stories. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कंपोस्टिंग करिए और सुनते रहिए. थैंक यू, प्रणाम, बाय बाय, नमस्कार.